May I request Rakesh Soni ji to introduce our next presenter, DVJ Deepak. Over to you, Rakesh ji. Thank you, Neeru ji. Let me introduce DVJ Deepak. DVJ Deepak goes with the stage name Optical Illusion. He is an international DJ and visual jockey, video editor, video DJ, and has been in the industry since past 16 years. Being an electronic and communication engineer, his endless self-motivation and tremendous effort have made him achieve a remarkable stand in the musical arena of Hyderabad. Deepak is also a certified Apple technician who had scored 97 in an exam conducted by Apple. His company Mad Mac Tech started in 2010, and since then he is known for providing premium quality service support for Apple iOS and Mac OS devices. Over to you, Deepak ji. Is everybody? Are you able to hear me? Yeah, everyone. Yeah. Yes. Yeah. So, welcome to everyone. That was a very good performance by Mr. Bobby. I also got a chance to work with him a couple of times. He's a very thorough professional. So I really had a very good experience working with him. Bobby Garu, I hope you remember we worked quite a couple of times in earlier. Yes. So, going on with my presentation. So, events, entertainment to chalte rahenge. So this is one presentation which I wanted to keep it as authentic and as in general as possible. So I started off as a DJ like about in 2002-3. So DJ के बाद I got into visual jockeying. Visual jockeying के बाद I discovered video editing, animation, graphic design and all. उसके ऊपर मैं काम करना चालू किया था. So it took about 4 to 5 years for me to master the art of video editing, graphic designing, animation, and ये सब करने के लिए I am a self-motivated and self-learned man. मैं किसी training वगैरह कुछ नहीं किया था. तो इसके बाद so what grabbed my attention is the Apple computers which usually are used as laptops and desktops. So उधर I bought my first Apple computer in 2010. मैं क्या किया था, मेरा खुद के रिलेटेड जितने भी इश्यूज आते थे मैं सर्विस सेंटर जाता था. वो लोग बोलते थे कि सर दिस कैन नॉट बी फिक्स्ड, आपको 50-60,000 होंगे, यू हैव टू गेट द होल थिंग रिप्लेस्ड. सो दैट पर्टिकुलर थिंग sat in my mind for quite long time. इतना गंदी तरीके से बैठ गया था कि I have to figure out a way for it बोल के I started fixing my own hardware and software issues with regards to Apple computers. So उसके बाद when I was confident about myself, I started offering the same services to my friends. So अभी मेरा introduction, keeping my introduction aside, I want to give a brief about how daily technology we are using nowadays is helpful for you and what are the disadvantages of the technology more than the advantages. अभी जितने भी लोग ये मीटिंग में है तो आप लोग you might be live through your smartphones. Most of them might be live through smartphones and most of them might be live even from your webcams of your computer. आपका जो कंप्यूटर का वेबकैम है it is 100% vulnerable to getting hacked at any point of time. अभी आप बैठे बैठे भी आपका कैम हैक हो सकता है. That is, आपके विंडोज कंप्यूटर में your Windows computer is 100% vulnerable for getting hacked at any given second at any given point of time. अगर आप वही चीज अगर आप एक आईफोन में या मैक में या मैक कंप्यूटर में या आईपैड में अगर आप करते हो ना, अगर आपको एप्पल iOS या मैकओएस प्लेटफॉर्म के लिए एक ऐप बनाना हो तो यू हैव टू बी अ सर्टिफाइड डेवलपर, यू हैव टू बी अ रजिस्टर्ड डेवलपर विद एप्पल. जब तक एप्पल आपको अप्रूवल नहीं देगा, जब तक आप एक ऐप नहीं बना सकते, एक सॉफ्टवेयर नहीं बना सकते, यू कैन नॉट डेवलप एनीथिंग फॉर योर मैकओएस डिवाइस और फॉर योर आईफोन. तो the places where you are vulnerable, अगर आपको या व्हाट्सएप पे या ईमेल पे या टेक्स्ट में कहीं भी इफ यू गेट अ लिंक, एक सस्पिशियस लिंक आता है आपको सो एंड सो यू हैव वन सो एंड सो करोड़ रुपीस, आपको ये कार आया है, आपको ये लॉटरी लगी है करके, व्हेन यू टैप ऑन दैट लिंक, that is the point where your device, your personal information, your credentials on your electronic devices are vulnerable to getting hacked. आपको जब भी वो लिंक आता है ना, पहला चीज क्या होता है, without your notice on Windows computers and on Android smartphones, एक सीधा बैक एंड में एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड होता है which will take control of your entire system without your notice, whether it be a smartphone, whether it be an Android.
आपका वेबकैम, अभी मैक कंप्यूटर्स में कैसा होता है, जब आप वेबकैम ऑन कर रहे हो तो कैमरा के बाजू एक छोटा सा लाइट रहता है, अगर वो लाइट जला, इट इज मीनिंग दैट योर कैमरा इज एक्टिव। आपका जितना आपका परमिशन के थ्रू कैमरा एक्टिव हुआ है करके यू विल गेट टू नो। वो हैकर इतना वो स्मार्ट रहता है कि ही विल नेवर लेट यू नो दैट आपका डिवाइस हैक हो गया है। आपका जितना भी, अगर आप एक स्मार्टफोन से जितना भी, अगर आप एक वीडियो कॉल कर रहे हो या वीडियो चैट कर रहे हो या आप सेल्फी ले रहे हो, एवरीथिंग इज वल्नरेबल टू गेटिंग हैक्ड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। सो मोबाइल फोन में तो इसका यू कैन नॉट कंट्रोल इट एज इफेक्टिवली एज पॉसिबल, बट अगर वही आप एक कंप्यूटर यूज कर रहे हो या लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, आपके वेबकैम पे यू कैन स्टिक अ स्मॉल पीस ऑफ सर्जिकल टेप, वो पेपर टेप जो आता है ना, जो हॉस्पिटल में यूज करते हो, यू जस्ट कवर योर वेबकैम विद द टेप। जितने भी बड़े टेक कंपनीज है, या फेसबुक का ओनर मार्क जकरबर्ग या गूगल का सुंदर पिचाई, यू फाइंड ऑल दीज CEOs, presidents, vice presidents of all the leading tech companies in the world, they all have their webcams closed. उनके पर्सनल कंप्यूटर हो या ऑफिस का कंप्यूटर में they don't use the webcam, बट लैपटॉप जो बिल्ड होता है उसमें ऑलरेडी बिल्ट इन रहता है, सो यू कैन नॉट कंट्रोल दैट। सो उसके ऊपर यू हैव टू ऑलवेज मेक श्योर दैट यू आर स्टिकिंग अ स्मॉल पीस ऑफ टेप, सो दैट अगर आपके अंदर वो मालवेयर डाउनलोड भी हो गया, एक्टिवेट हो गया, इवन इफ द हैकर इज हैविंग टोटल कंट्रोल ऑफ योर डिवाइस, to some extent you can make sure कि you are not getting hacked or you're not getting vulnerable। कि आप जहाँ पे भी, अगर आपका स्मार्टफोन ऐसा कैरी कर रहे हो, आप कहीं भी कैरी कर रहे हो, आपका कैमरा चालू हो जाता है विदाउट योर नोटिस, आप जहाँ भी घूम रहे हो हर चीज दिखाई देगा उसको, एंड देयर इज अ पोटेंशियल चांस ऑफ यू गेटिंग ब्लैकमेल्ड ऑनलाइन कि मेरे को इतना रैंसम भरिए आप, यू हैव टू पे मी सो एंड सो अमाउंट ऑफ मनी, जब जाके मैं आपका कंटेंट डिलीट कर दूंगा। सो दिस इज वन डिसएडवांटेज ऑफ द टेक्नोलॉजी दीज डेज। And most importantly coming to the smartphones, अभी ये जो स्मार्टफोन आप लोग यूज कर रहे हैं, माई फोन इज iPhone 11 Pro Max, iPhone रहने दीजिए या एंड्रॉइड रहने दीजिए, एनी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच रन्स ऑन अ ड्राई बैटरी, आपको रिपीटेडली रैंडमली कभी चार्ज नहीं करना चाहिए उसको। आप 20% के नीचे अगर आपका बैटरी आया, चार्ज करिए। अगर आपको बीच में एक फोन कॉल आया, आप डिस्कनेक्ट करिए, बात करिए, call end करिए, you connect it back to the charger, and do not break the charging cycle until and unless your battery reaches to 100%. That is called one charge cycle. To 20% to 100% is the full charge cycle. 100% to 20%, that is called one full discharge cycle. So जितना आपका चार्जिंग साइकिल और डिस्चार्जिंग साइकिल जितना प्रॉपरली होता है ना, तो 1 साल चलने वाला बैटरी आपको 2 साल, 2.5 साल, 3 साल चल सकता है। आप रैंडमली, you should never charge your smartphone, never charge your laptop, never charge any electronic device which runs on a dry battery randomly, क्योंकि जितना आप चार्ज करोगे ना, आजकल स्मार्ट बैटरीज पे there's a small chip which records each and every activity of your charging। आप जितने बार चार्ज कर रहे हो, जितना बार, अगर आपको छोटे लोग ऐसे होते हैं 100% पे, जब 60 आ गया तो अरे भाई 60 आ गया, आई हैव टू चार्ज, मेरे को इंपॉर्टेंट कॉल्स आते करके दे स्टार्ट चार्जिंग। So that is not the way you have to maintain your device। आपको 1 साल चलने वाला बैटरी जब 2.5-3 साल चलने का जब आपके पास चांस है, तो why you have to ruin that opportunity or that chance? And thirdly, आज के nowadays बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है, जब लोग कॉल आंसर कर रहे हैं, कॉल बात कर रहे हो, आपका वॉइस ब्रेक होता है, या डेटा का प्रॉब्लम होता है, या कभी कभी भाई मेरे को सुनने नहीं आ रहा, जोर से बात कर बोलते, द कॉल गेट्स डिस्कनेक्टेड, आपकी बात अधूरी हो जाती है। सो दिस इज हैपनिंग बिकॉज 3G जब था अपना टेक्नोलॉजी, 3G में डेटा का बैंडविड्थ, डेटा का फ्रीक्वेंसी एंड वॉइस का फ्रीक्वेंसी यूज्ड टू बी डिफरेंट। अभी 4G में डेटा एंड वॉइस बोथ आर कंबाइंड टुगेदर, तो आपको जितना स्पीड में आपको वॉइस आता है ना, उतना स्पीड में भी आपको डेटा आता है। सो मेरा ऑन आईफोन स्पेशली देयर इज अ सेटिंग जहाँ पे जब आपका कॉल आता है, आपका कॉल, योर नेटवर्क इज ऑटोमेटिकली शिफ्टेड टू 3G। जब आपका कॉल खत्म होता है, then the network is automatically shifted to 4G। ये शिफ्टिंग का जो प्रोसेस है, the phone automatically does by itself। तो जब आप एक 3G नेटवर्क पे अगर आप एक फोन कॉल बात कर रहे हो, 3G नेटवर्क इज वेरी स्ट्रांग, अगर उसका वॉइस का अलग फ्रीक्वेंसी है, डेटा का अलग फ्रीक्वेंसी है। सो अगर आप एक 3G नेटवर्क पे आप कॉल ले रहे हो ना, आपका कॉल कभी डिस्कनेक्ट नहीं होगा। तो जितना टाइम आप कॉल बात कर रहे हो उसके ऊपर 3G में रहेगा, जब कॉल खत्म होगा 4G में आएगा। तो दिस इज वन थिंग। एंड ऊपर से जितने भी लोग अगर लैपटॉप्स यूज कर रहे हैं इधर, लेट इट बी विंडोज लैपटॉप्स और मैक्स, पुराना नया जो भी है, तो आफ्टर अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम आपका लैपटॉप ज्यादा हीट करने लगता है, स्लो होने लगता है,
अगर आप उसको रीस्टार्ट करना चाह रहे तो इट विल टेक अबाउट 3 or 4 or 5 sometimes 10 minutes also to boot up. So that is because लैपटॉप्स का हार्ड डिस्क इज वेरी स्मॉल, उसका स्पीड रहता है 5400 RPM. दैट इज मोर लाइक अ ग्रामफोन रिकॉर्ड. जैसा ग्रामफोन रिकॉर्ड के ऊपर नीडल रहता है, जितना वो रिकॉर्ड घूमते रहता है उतना दैट रिकॉर्ड गेट्स रप्चर्ड विद दैट पर्टिकुलर नीडल ऑन द ग्रामफोन. तो जब वो ज्यादा घसे जाता है, सो दैट रिकॉर्ड गेट स्टक एट अ सिंगल पॉइंट. तो उसके आगे ना आगे जाएगा ना पीछे जाएगा वो. So this is 100% vulnerable in a spinning hard disk with either 5400 RPM or 7200 RPM, जो मैकेनिकल हार्ड डिस्क है, जिसके अंदर मोटर रहता है, एक प्लेटर रहता है, वो घूमते रहता है. सो दिस इज 100% vulnerable, ये पर्टिकुलर लैपटॉप है. सो वैसे टाइम पे लोग क्या सोचते हैं कि भाई मेरा लैपटॉप पुराना हो गया, वी हैव टू थ्रो दिस असाइड, वी हैव टू गेट अ न्यू मशीन. 100% आपको वो चीज करने की जरूरत नहीं है. आपको आपका लैपटॉप पुराना हो गया, इफ यू वांट to get a new laptop, और आपका लैपटॉप स्लो होने की वजह से if you are planning to get a new laptop, you don't have to go for it. 100% जाने की जरूरत नहीं है. One hack for it is, आपका जो स्टोरेज डिवाइस है, एक आध टाइम पे आपको वो फिजिकल मैकेनिकल हार्ड डिस्क आ जाते हैं. अभी there is a new technology which is been lying in the market since about 10, 15, 18 years oddly. That's called a solid state drive. उसके अंदर कोई फिजिकल मैकेनिकल पार्ट्स नहीं रहते उसके अंदर. इट इज मोर और लेस लाइक अ रैम. अगर आप लोग इफ यू आर फेमिलियर विथ हाउ अ कंप्यूटर रैम चिप इज, बस एक छोटा सा मॉड्यूल रहता है, उसके अंदर आप डाल दिए तो एवरीथिंग हैपेंस. तो दैट इज वेयर आपका डिवाइस और आपका हार्ड डिस्क वो तरीके में रहता है आपको. am I supposed to stop? We have 2 more minutes. Yes, वही आपका, I just heard a bell ringing, so I just thought. Yeah. Okay, so आपका ये पर्टिकुलर हार्ड डिस्क का लाइफ होता है, फिजिकल मैकेनिकल हार्ड डिस्क का लाइफ इज मैक्सिमम टू 3 to 4 years. सॉलिड स्टेट ड्राइव में देयर इज नो लाइफ. आप जितने दिन आप लैपटॉप यूज करना चाह रहे हो, या 10 years, 15 years, 20, जितने साल यूज करना चाहते हैं आप यूज करना चाह रहे हो, क्योंकि दैट पर्टिकुलर सॉलिड स्टेट ड्राइव डजंट हैव एनी मैकेनिकल पार्ट्स. उसका कोई लाइफ नहीं रहता है. आप जितने साल यूज करना चाहते हो उतना यूज कर सकते हो आप. सो ये सब बोलने का चीज एक ही है कि most of them who are present here, everybody knows the entertainment part of mine, me being a DJ or a visual jockey or a video editor, और जितना भी मैं काम करता हूँ Facebook पे, everything is visible. So the whole and sole purpose of keeping this side of mine is I just want to create a small awareness amongst people ki what technology is all about, how it is impacting our lives, and if at a point आपको technology से कोई problem हो रहा है, whatever the piece of technology, hardware or software आप use कर रहे हो, if you are facing a problem with that particular technology at a certain point, how to overcome that. So this is my main motive and intention was behind my presentation. So I hope you people, जितने भी लोग 49 participants जितने भी हो, I hope you might have got to know something different, or maybe आपका जो problems है, एक point पे जहाँ पे आप अटक रहे थे, I think I mostly hope कि आप लोगों के जितने भी एक आध प्रॉब्लम कहीं ना कहीं, एक आध डाउट क्लैरिफाई हो गया करके मैं I'm just expecting. So if you still have any problems regarding any computer, like maybe Windows or Mac, I am specialized in Mac. I am an Apple certified Mac technician. So it is a direct exam conducted by Apple by themselves. वो online exam होता है. The exam costs about $120 each paper. So there are 2 papers which you have to attend. So 2 exams मैंने clear किया था. So out of 100, 80% is the passing marks for that. So 1 paper I cleared with 97 and the second paper I cleared with 99. So this exam is basically conducted by Apple for recruiting onboard technicians to work with them at an authorized service provider. But I choose not to work with them because their policies and their work-related rules and regulations don't go well with me. So I choose not to work with them. So I'm just working as a freelance certified technician. So that's all for my presentation. So अगर कुछ पूछना, yes, like Chetan bhai was asking for a small tip about iOS this thing. Chetan bhai, I really don't know whether you were there or not when I was telling about the battery part. Were you there? Yeah. Yes. Yes, that's all for my presentation. So thank you so much for the opportunity. I hope you guys are satisfied with whatever I've told you. Thank you so much, Deepak, Mad MacTech, EC member in TIA. It was really very much informative, and we are very sure that it's going to help all the members who have joined us today evening. So may I really hope so, ma'am. I'm really, and most importantly, I'm very much thankful for
I'm happy in a way that I could render my services to some of the members of our TCI also. I think they are abhi Balram bhai hai, apna Dharam bhai hai. They are quite a few people. I would say my happy customers who are actually happy after rendering my services to them. It's I'm really also good there. to hear. Bye. I know. No, we'll Rakesh get bhai is back going for the to be question my answer customer round. from tomorrow. Once we are done with all the presenters, we'll get back for the question answer round. Yes, please, ma'am. Yes, please. Anytime. Thank you, Deepak. Okay. Hello. Deepak. हाँ सर पूछिए सवाल. Yeah, Deepak. This is a question for Deepak. Deepak, this is Sudhakar. See, Sir, may I request you please waited- आप अपना वीडियो ऑन कर लीजिए एक बार. Yeah, one second. Yeah. Okay, can you see me? Fine. Yeah, Okay, Sudhakar, sir, Deepak, please. quick question. Are you there? Yes, sir. Please go on. Are you there? Yeah. Yeah, so I have iPad iPad, which is a third version of it, third generation iPad. Now, what happens is over it, these apps get updated, and then now it's when I try to download apps from the store, it says this app, this iPad not completed. But there a way you can update or cheat the iOS and then start downloading the latest apps? Sir, unfortunately, you cannot Because cheat after iOS like how 10.1 we can do with macOS. Because the thing is, अगर आपको ऐसा कुछ करना है आपको या it might be your iPad or iPhone or anything, ये Mac में कैसा होता है, you can install whatever version you want, whatever software you want, you can downgrade, upgrade as per whatever your will and wishes. पर ये iPhones का basically कैसा होता है, whenever you try to restore an iPhone or an iPad or something, the information in this will directly go and hit the Apple server first through internet. ये पहले इस इधर से जाके it will go and ping in the Apple server saying इसका serial number क्या है, इसका IMEI number क्या है, ये कितने दिन से use में है, what is the model of this phone, what is the supportive software on this, and what is the minimum software version on this, and what is the maximum version of it करके the server will decide. You cannot cheat iOS, but you can completely and fully cheat macOS. iOS को you cannot cheat in any way. And this is one way of Apple making you to keep your older devices aside and pushing you towards purchasing the new and latest hardware, whatever they are coming up with. एक वर्जन तक आपको सपोर्ट देंगे वो लोग, एक वर्जन के बाद इवन इफ यू वांट टू डाउनलोड अ लेटेस्ट ऐप, आपको iOS सपोर्ट नहीं करता. जब आपको iOS सपोर्ट नहीं करता तो जाहिर बात है कि यू विल वॉक इनटू एन एप्पल स्टोर सेइंग भाई मेरे को ये ऐप डाउनलोड करने नहीं दे रहा है, व्हाट आई हैव टू डू. तो वो टाइम पे आपको वो बंदा बोलेगा कि सर ये पर्टिकुलर हार्डवेयर में यही आता है सॉफ्टवेयर, आपको इसके आगे जा सकते नहीं आप. अगर आपको इसके आगे जाना है तो आपको लेटेस्ट वाला हार्डवेयर लेना जरूरी है. So iOS you cannot bypass, but macOS yes you can. Yeah, do you have any question, Bobby ji? Yeah, Deepak. Okay. When you Yes, Mr. Bobby, please go on. Yes, I'm there. when you're installing a particular app, it will ask so many questions like accessing for camera, accessing for SMS, accessing for contacts. If you don't accept that, will it be installed or it is compulsory to accept? Are you saying about on a smartphone or on a laptop, sir? Smartphone. Yeah. Can you name the app anything in particular if you can? दीपक जी, ये प्रॉब्लम हम हर फेस करता है. जैसे आपने WhatsApp इंस्टॉल किया है तो WhatsApp आपसे 3 परमिशन पहले पूछता है. पहले पूछता है आपका कैमरा एक्सेस, कॉन्टैक्ट एक्सेस, देन SMS एक्सेस. ये 3 चीजों पूछता है जब जाके आपका WhatsApp इंस्टॉल होता है. अगर आप उसको एक्सेस नहीं दोगे तो फिर वो कैसे आपको एक्टिव होगा? इंस्टॉलेशन के टाइम पे यू हैव टू 100% ग्रांट एक्सेस, नहीं तो वो ऐप 100% इंस्टॉल नहीं होगा इंस्टॉलेशन के टाइम. बट वंस द इंस्टॉलेशन इज डन, आप आपके व्हाट्सएप के सेटिंग्स में जाके, नॉट ऑन द व्हाट्सएप ऐप, आपके फोन के जो सेटिंग्स होते हैं ना, आईफोन में कैसा होता है आपको, व्हेन यू गो इनटू सेटिंग्स, आपको एक एक ऐप के इंडिविजुअल सेटिंग्स रहते हैं आपको. एंड्रॉइड का आई हैव नो आइडिया उतना एंड्रॉइड का, बट आईफोन में तो ऐसा सेटिंग होता है. अगर आईफोन में, अगर iOS में ये ऑप्शन है तो आई एम श्योर एंड्रॉइड में भी वो सेटिंग हो सकता है. Individual app settings. Yeah, individual app settings, you can go into that settings and you can there are
three options in iOS: always on, always off, activate while using the app. So you can agar see that app is designed in such a way जी आपको हर app आपको track करता है, आपका location लेता है, it tracks everything about you because आपका जहाँ से वहाँ आपका जो information निकालता है ना, that is where they will gather that information and they will develop ads in such a way. आपको क्योंकि आपको एक ऐप फ्री में आ रहा है तो ऐसा नहीं है कि that app company is not making any money out of it. The only revenue source for that particular company for making the money out of that app by giving for you free is आपको फ्री में ऐप देते हैं वो लोग, आपसे इन्फॉर्मेशन लेते हैं, they will collect that information. अगर वो इन्फॉर्मेशन को वो लोग खुद के R&D के लिए यूज कर रहे हैं या they are selling that information to some other company और वो that is subjected to their will and wish. It is your will and wish whether to grant the access or not. अगर आपको ऐप चाहिए आपको एक्सेस देना ही पड़ेगा. अगर एक बार ऐप इंस्टॉल हो गया you can go straight away into the app settings. You can reject permission or you can deny permission to whatever you want. दीपक जी एक क्वेश्चन मेरे साइड से आपके लिए है. Yes, please. मेरे फोन के अंदर there is a 7 Pro, OnePlus 7 Pro, ठीक है. तो मेरे साथ रिसेंटली परसों एक सीन हुआ है. मैं बैठे बैठे आईकिया को लेके बात कर रहा था डैड से. तो मेरे फोन में जैसे मैंने इंस्टाग्राम ऑन किया है तो आईकिया के एड्स आ गए, ठीक है. तो सडनली आईकिया कैसे आ गया मेरे फोन पे? मैंने ना गूगल किया था ना मैंने इंस्टाग्राम लिखा था आईकिया, खाली हम लोग बात कर रहे थे. तो शायद ऐसे ही कुछ हुआ होगा. फिर हम लोगों ने बिग बास्केट को लेकर कुछ बात करा तो बिग बास्केट का ऐड आ गया. तो ये कैसे आते हैं ऐड? ये इसी से आता है क्योंकि वो ऐप का ऐड डिस्कशन लाइक आप उस पे टाइप नहीं कर रहे हो, सर्च कर रहे हैं आपको ये ऐप का इंफॉर्मेशन इंस्टाग्राम पे कैसे आता है नोटिफिकेशन ऐड के तौर पे. तो इसका लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट 100 बात की एक बात, इसका एक ही रीजन है. आपको जब व्हाट्सएप इंस्टॉल करते हो इट विल आस्क फॉर योर माइक एंड कैमरा एंड कॉन्टैक्ट्स, ये सब एक्सेस पूछता है ना आपको. राइट. आपका जब माइक ऑन, वही मैं जो वेबकैम की बात बोल रहा था मैं, दिस इज मोर और लेस इन द सेम वे. बट ऐसा है कि ये लोग ये इन्फॉर्मेशन लेके आपको सी दिस इज मोर लाइक अ डिजिटल मार्केटिंग. अभी जैसा आप लोग ऑनलाइन मार्केटिंग देखते हो या गूगल एड्स देखते हो, इंस्टाग्राम प्रमोशंस या फेसबुक एड्स देखते हो ना, सो दिस इज मोर और लेस लाइक दैट. आपका इन्फॉर्मेशन लेता है आपका फोन. सर आप एक्सेस, मैं बोलना चाह रहा हूँ अगर आप टाइप करोगे तो आपका डाटा जाएगा ना. अगर आप गूगल करोगे गूगल सर्च करोगे तो आपका डाटा जाएगा. मैं बोल रहा हूँ मेरा फोन पास में रखा हुआ है और हम बात कर रहे हैं और उसके 1 घंटे बाद जब मैं फोन चेक करता हूँ तो मुझे इंस्टाग्राम पे उसका ऐड मिल रहा है. और मैंने रिसेंटली 2-3 चीज बात करके देखी इसके लिए. तो बात करके देखा स्विगी के लिए, मैंने बात की स्विगी मेरे फोन पे आता है ऐड पे. So what are you trying to say is अगर आपका फोन आप बाजू रख के भी if you talk about a particular brand, when you open your phone back आपको उसका ऐड आ रहा है. हाँ. तो आपका एंड्रॉइड है या आईफोन है? मेरा एंड्रॉइड है. एंड्रॉइड में तो 100% वल्नरेबल है. I'll tell you why. एंड्रॉइड एक ऐसा मोबाइल ओएस है, इट इज मोर और लेस लाइक विंडोज. जैसा मैं स्टार्टिंग में बोला था, इफ यू वांट टू डेवलप एन ऐप फॉर आईफोन और समथिंग ऑन एन आईओएस और अ मैकओएस थिंग, आपको यू हैव टू रजिस्टर योरसेल्फ एज अ डेवलपर विद एप्पल. So that admission, that right to whether to grant you access to write an app or to reject an permission for writing an app lies with Apple. Okay. आप बस रिक्वेस्ट दे सकते हो. yes और no करने का डिसीजन फाइनली lies with Apple. बट एंड्रॉइड में ऐसा नहीं है. यू कैन बी, अगर आप एक एमेच्योर प्रोग्रामर हो या एडवांस्ड बेसिक प्रोफेशनल जो भी हो ना, आप एक कोड लिख सकते हो, आप एक ऐप बना सकते हो, वो प्ले स्टोर में डाल सकते हो. दैट इज द रीजन वाई आपको जितने भी प्ले स्टोर में एप्स अवेलेबल रहते हैं ना, आपको थोड़े एप्स इस तरह से ऐसे रहते हैं, आपको एंड्रॉइड आईफोन पे नहीं रहते, वो ऐप स्टोर में रहते, पर आपको गूगल प्ले स्टोर में रहते हैं. दैट इज बिकॉज गूगल प्ले स्टोर इज वेरी बिग. दैट इज मोर लाइक एन ओपन सोर्स कोड. आपका वो कोड फ्री में मिल जाएगा. वो कोड के बेसिस पे यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ अ सॉफ्टवेयर, यू कैन राइट एनी काइंड ऑफ एन ऐप. वो आप लिख सकते हो, आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर पे रख सकते हो, आपका ऐप का मार्केटिंग कर सकते हो. आप जब लोग वो जाके जब वो डाउनलोड करेंगे, यू आर 100% वल्नरेबल. अभी लेट मी टेल यू, अभी ये बोल रहा हूँ, आई एम टेलिंग यू अबाउट द आईफोन. इसमें एक लॉक होता है, एक्टिवेशन लॉक करके. सो व्हेन यू हार्ड रीसेट योर फोन, डेटा वेटा सब जाएगा. आपका फोन ऐसा रहेगा कि पहली बार जब आप फोन ऑन कर रहे हो ना, वैसा रहेगा. तो आप पहले क्या करेंगे, रीजन सेलेक्ट करोगे, लोकेशन सेलेक्ट करोगे और लैंग्वेज सेलेक्ट करोगे. सब चीज सेलेक्ट करने के बाद एक स्क्रीन आता है, एक्टिवेशन लॉक. दैट इज वेयर यू हैव टू एंटर योर एप्पल आईडी एंड पासवर्ड. जब तक वो पासवर्ड एंटर करने, वो स्क्रीन आने से पहले आपको वाईफाई सेलेक्ट करना पड़ेगा. सो व्हेन यू सेलेक्ट योर वाईफाई, आपका सीधा फोन का इन्फॉर्मेशन एप्पल के सर्वर पे पिंग होगा, उधर से आपका एक्टिवेशन लॉक का स्क्रीन आएगा. जब तक आप आपका एप्पल आईडी पासवर्ड एंटर नहीं करोगे, आपका फोन खुलेगा नहीं. एंड
एंटर करने के बाद भी वो नहीं खुलेगा। आपका अगर दूसरा कुछ एप्पल वॉच है या मैक है, उस पे आपको एक 6 डिजिट कोड आएगा, और वो 6 डिजिट कोड यू हैव टू एंटर ऑन दिस पर्टिकुलर आईफोन टू गेट एक्टिवेटेड। जब तक वो एक्टिवेट नहीं होगा, सो दिस इज कॉल्ड 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन। आजकल गूगल चालू किया, गूगल का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोड में भी दिस इज इंक्लूडेड। सो ये 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन इसीलिए है कि अगर आप फैक्ट्री रीसेट करने के बाद अगर आपका फोन गुम हो गया आईफोन, तो कोई जो बंदे को वो मिला, देयर इज 100% पॉसिबिलिटी कि वो पूरा फोन वाइप करेगा, उसका सिम कार्ड डालेगा, वो यूज कर सकता है। पर आईफोन में ऐसा नहीं होता है। अगर आप वाइप भी करते हो तो आपका ये एक्टिवेशन में आकर रुक जाएगा। सर अगर आईफोन चोरी का है तो जगदीश मार्केट में जाओ करके देता है सामने वाला पैसे लेके। नहीं करेगा वो। नहीं पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ ऐसा ही एक किस्सा हुआ था आईफोन का। हाँ। तो ये पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है, यही फायदा है ISO सेटिंग। भाई अगर आप कर सकते हो ना, एंड्रॉइड छोड़ के अब हमारे को एप्पल पे आना पड़ेगा। नहीं मैं बोल रही, आई एम हियर टू एक्सप्लेन यू द प्रोज एंड कॉन्स ऑफ द टेक्नोलॉजी व्हिच यू आर यूजिंग। मैं ये इसीलिए पॉसिबल नहीं है मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि ये जो एक्टिवेशन लॉक, iCloud लॉक है, दिस इज नॉट ऑफलाइन, ये सीधा एप्पल के सर्वर से होता है। तो दैट इज द रीजन व्हाई इट आस्क फॉर कनेक्टिंग टू वाईफाई। वो 4G नेटवर्क भी नहीं पूछता है वो। एंड माइंड यू, iOS devices are very capable of making out whether you're connected to a mobile network or a Wi-Fi network. और वो मोबाइल नेटवर्क बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। यू हैव टू कनेक्ट इट टू अ वाईफाई नेटवर्क। जब भी जाके सुधाकर सर हमारे साथ हैं, वो कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर पूछिए प्लीज। हाँ जी। दीपक हाय सुधाकर हियर सर చెప్పండి। हेलो यस सर प्लीज। नथिंग, ఇది कॉल्स ऑन अदर डिवाइसेस जो एप्पल में रहता ना, कॉल्स ऑन अदर डिवाइसेस। हाँ, अर्लियर आई यूज्ड टू get the call on my Mac. Okay. With my AirPods, I used to take. Abhi usko how do I reconnect that calls on other devices? First thing is you have to connect all of your devices to the same Wi-Fi network. Same Wi-Fi network and same iCloud also. Yeah, same iPhone, same Wi-Fi, same iCloud, and on your Mac, on your FaceTime app, when you go to preferences of the FaceTime, you will find an option called accept calls on this device. You will find an option. You have to tick that option. You have to check that option. On FaceTime. On FaceTime. Yes. On FaceTime, right? FaceTime in your Mac. FaceTime in my Mac. Okay. Yeah. There I have to go for the preferences and what should I select? Let me just check, sir. Abhi, when you once go into FaceTime, FaceTime preferences, you will find an option called. And one more thing, can I? Yeah. One more thing, can I make calls from my Mac using my mobile? Yes, connected you can. To it. Yeah, for that also you need to connect to the same Wi-Fi network. And I see the number of contacts I have in my iPhone. Mm-hmm. I don't find so all the contacts in my Mac. My Mac में भी जो contacts का ये रहता ना, हाँ. I don't see all the contacts. How do I sync them? उसके लिए you if your contacts are saved on the iCloud account, आपके Mac में आपका iCloud logged in है तो so it will sync automatically your contacts across all of your devices which are connected to the iCloud. So I have to connect my iCloud even for contacts, right? Yeah, you have to activate the iCloud, sir. If your contacts are saved on the iCloud and if your devices are... See, my contacts are with Google. It won't happen, sir. If your contacts are saved in Google Contacts, it won't happen, sir. You have to use it won't happen, no? Yeah. Okay. Yeah. So in FaceTime, I just need to search for the preferences and try for it, right? Yeah, yes, sir. If you have any doubt, you can thank you. As always, you can give me a call. I know. You're always available. Thank you so much. Thank you. Thank you, sir. Thank you so much. This is DJ Piyush here. I just wanted to say that loved all the presentations of Atul, Deepak and Bobby. Got to know a lot about everybody. And I think it's just a suggestion from my side. I think अब तक मुझे ऐसा लगता था कि मुझे टेक्नोलॉजी के बारे में ठीक ठाक पता है, बट दीपक का सेशन सुनने के बाद obviously I think we need to have a special session where Deepak and people like RJ Chetan who are so tech savvy and they can educate all of us about technology and social media. And I would request TIFA to organize something like this, and TA also would love to be a part of it and in any way possible. Thank you. Anytime for sharing my knowledge, by anytime. Thank you.